Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, we are having playlist of banking, financial and economic awareness videos. In the earlier playlist of 197 videos, there were some videos, those were in English only. They were around 40 in number. So, I have carved out those 40 videos from that playlist and made a separate playlist. Now 157 videos are there in the banking, financial and economic awareness main playlist. Those are bilingual because some people those wanted to acquire knowledge through Hindi, they were finding it difficult to comprehend English only videos. Now this English only videos are placed in a separate playlist and gradually these videos will be made in bilingual and that will be added to the main playlist. So two videos I have already made in Hindi and English both, and they are available in the playlist of this 157. So third video we are creating today. We will try to create one video daily so that in 1 month's time we have entire list of 197 videos bilingual, and then gradually we will take away the English playlist. So the first point is, what is public sector bank? Public sector bank means any bank where government share is 51% or more. As on date, these are 12 public sector banks, 11 are nationalized banks and one is other than nationalized, that is State Bank of India, and the total list contains 12 public sector bank. What is difference between nationalized bank and public sector bank? Nationalized banks are those banks those were earlier in private sector but later on taken over by the government of India, and this was done in two processes. The first process was done in 1969 when 14 banks were nationalized. Then in 1980, 6 more banks were nationalized. It made 20 nationalized banks. And gradually some nationalized banks merged into each other, and now we have 11 nationalized banks. Another bank is State Bank of India. That is also owned by government. So if we add nationalized banks plus State Bank, they are called public sector bank. That means State Bank of India is not a nationalized bank because it was a government bank when its name got changed into State Bank of India. Earlier name was Imperial Bank of India and it was owned by government at the time of independence. Then the next question comes, what is MCLR? MCLR stands for Marginal Cost Lending Rate, and I have explained this concept in detail in future the other videos that you might have already covered from the playlist, so I am not repeating this. Then one question is usually asked, where you see yourself after 5 years from now, more especially in scale 1 interviews. So at present, in 5 years, a scale 1 officer is able to become senior manager, that is scale 3. So the right answer is that, sir, I see myself as senior manager position within 5 years from now. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. 197 वीडियोस की मेरी प्लेलिस्ट थी जिसके अंदर मैंने बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की आपको वीडियोस दी थी. लगभग 40 वीडियो ऐसी थी जो इंग्लिश में थी केवल, बाकी वीडियो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में पहले से थी. अब क्योंकि वो शुरू में 40 वीडियो इंग्लिश की आती थी तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि सर हिंदी में भी दो, जबकि मैंने सबको बताया था कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों वीडियोस मिलेंगी. पर मैंने देखा काफ़ी लोग इस बात इतना सब्र नहीं कर पा रहे थे,
तो आज मैंने क्या किया कि जो शुरू की 40 वीडियोस है इनको वहां से हटा दिया उस प्लेलिस्ट से। अब 157 वीडियोस की आपकी प्लेलिस्ट रह गई है जो सारे हिंदी इंग्लिश है। जो 40 वीडियोस है उसकी दूसरी प्लेलिस्ट बना दी है इंग्लिश ओनली। 39 वीडियोस हैं उसमें, क्योंकि एक दो वीडियो ऐसी हैं जो डुप्लीकेशन थी वो भी मैंने हटा दी है, क्योंकि वो हिंदी इंग्लिश की बन चुकी है और इंग्लिश में भी चल रही थी, तो वो डुप्लीकेशन थी तो वो हटा दी है। अब हमारे पास 38 वीडियो ऐसी बची हैं जो इंग्लिश में थी, जिसमें से 2 की मैंने हिंदी इंग्लिश ऑलरेडी बना दी है। तो अब एक एक करके हम इसको कवर करते जाएंगे जो बाकी 36 वीडियोस बची हैं, और मेरी कोशिश है कि एक महीने में हम प्ले लिस्ट अपनी दोबारा 197 वीडियो की हिंदी इंग्लिश की पूरी कर लेंगे। तो हिंदी भाषी लोगों को भी हेल्प मिल गई और जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनको भी हेल्प मिल गई, और किसी की भी स्टडी में इसमें खलल नहीं पड़ेगा, इसलिए 2 प्लेलिस्ट मैंने बना दी। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन कॉलम में भी दे दिया। तो आज की ये जो 3rd वीडियो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ इंग्लिश से हिंदी में, इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या है, सरकारी क्षेत्र के बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक का अर्थ है ऐसा बैंक जिसमें भारत सरकार का 51% या उससे अधिक पूंजी लगी हुई है। ये सरकार में भारत सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकती है। अब आज की डेट में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है? आज की डेट में ये 12 है। 11 इसमें राष्ट्रीयकृत हैं और 12वां इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक और सरकारी क्षेत्र के बैंक में क्या अंतर है? राष्ट्रीयकृत का मतलब है कि वो बैंक जो पहले प्राइवेट सेक्टर में थे पर बाद में सरकार ने उसको अपने स्वामित्व में ले लिया, वो राष्ट्रीयकृत है। तो ये 2 बार हुआ, पहले 14 बैंक हुए 1969 में और फिर 6 बैंक हुए 1980 में, तो 20 बैंक राष्ट्रीयकृत हुए। इसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर मर्जर प्रोसेस हो गया और मर्जर के बाद अब ये 11 बचे, और एक स्टेट बैंक है जिसके अंदर उसकी सब्सिडरीज और भारतीय महिला बैंक मर्ज हो चुका है। तो आज की डेट में सरकारी क्षेत्र के बैंक अगर कहेंगे तो 12 कहेंगे और राष्ट्रीयकृत बैंक कहेंगे तो 11 कहेंगे। तो फर्क क्या हुआ कि जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ है वो राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाते हैं, और जो बिना राष्ट्रीयकरण के भी सरकारी हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि वो पहले से सरकार के अधीन था। उसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बाद में आज़ादी के बाद उसका नाम बदल के किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद एक वीडियो में हमने कवर किया था MCLR क्या है, मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट। इसको बहुत डिटेल में हमने दूसरी वीडियो में कवर किया हुआ है, तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम सारी वीडियो एक एक करके हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में बना देंगे। 197 वीडियो का ये प्लेलिस्ट आपका इंटैक्ट हो जाएगा। पर जब तक नहीं होता तो इसमें कम रहेंगी हिंदी इंग्लिश की, बाकी आप इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट से वॉच करें जो इंग्लिश में समझ सकते हैं, और जो नहीं समझ सकते इंग्लिश में उनको थोड़ा सब्र करना होगा। धीरे धीरे मैं ये कवर कर दूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।